Hello, students. A very fresh and beautiful morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself by staying home and staying safe. Welcome back to our English class. As you know, students, that we are done with our poem, that is The Veggie Lion, right, from your Communicate in English textbook. And I have sent you the PDF related to it. So please do complete your work in your textbook and notebook according to the instructions given in the PDF. And today we would be continuing with the new chapter from your grammar textbook, that is Collins English Grammar and Composition. And the chapter which we are going to do is simple present and present continuous tense. Now students, why are we going to do this chapter? Because this chapter, simple present and present continuous tense, this topic is related to the chapter Mina's letter, right, which we studied from Communicate in English, right. आपको याद होगा कि जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था उसमें जो ग्रामर का टॉपिक पढ़ा था वो भी सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस ही था, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी the same topic in detail from your English grammar book. So let's start our today's class, that is simple present and present continuous tense from your grammar textbook. So students, please open your English grammar book, page number 55. As you know students कि tenses क्या होता है, मैंने आपको मीनाज लेटर पढ़ाने के टाइम पे भी समझाया था कि what are tenses. Tenses are the words which shows the time of the action. It shows when the action has been carried out, right. So normally in English when we refer to the tenses, we are talking about 3 times when the action can be conducted, right. That is present, past and future. Which are the 3 times which the action could take place? It's present, past and future, right. And the state of action are 4. The state of action are 4, that is simple, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, so those are the 4 state of actions when the action could take place and how the action could take place. Now today we are going to study the first one, that is simple present tense. Okay. Now what is simple present tense, students? Simple present means we are talking about the actions which we carry out on a regular basis. When we talk about our habits and repeated actions, that means कुछ चीज़ें जो हमारी हैबिट बन चुकी है और जो हम रेगुलरली करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं और वो हमारा रूटीन बन जाता है. We also use simple present tense for the actions which are used to refer to scheduled events or activities which are going to happen in near future. Okay, and we also use simple present tense when we are talking about the facts or the things which are true. Facts or things which are true, that means जो चीज़ें universally accepted है कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, right, it is a fact, then we are going to use simple present tense over there. Okay, now let's see some examples related to it so that you can understand. For example, if we say the sun rises in the east. Now here students, if you see the sentence, the sun rises in the east, here this is a fact which cannot be changed, है ना. ये जो चीज़ है, ये जो बात लिखी गई है वो fact है. It is universally accepted truth which cannot be changed, and that's why we are going to use simple present tense over here. And how would you make out? You can make it out from the verb or in the sentence. The verb which is present in the sentence, that indicates the tense of the sentence. Okay. If I write students that
I walk to school daily. What does it mean? That I daily go to school walking. मैं रोज़ चल के स्कूल जाती हूँ. ठीक है. So when I say I walk to school daily, it shows something which is my routine or which is my habit, right? Which I do it on the regular basis. मैं regularly ही ये चीज़ करती हूँ, है ना. तो अगर हम जब किसी रेगुलरली होने वाली एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जो एक्शंस रिपीट होती है या फिर जो हमारी हैबिट है, रूटीन है, तो भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना होता है. एंड वी कैन ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर द एक्शंस which are scheduled in near future. For example, if I say my flight leaves at 7 p.m. Now here students, my flight leaves at 7 p.m. Now ये जो फ्लाइट है मेरी वो अभी तक गई नहीं है. ओके, इट इज़ नॉट गॉन, इट इज़ गोइंग टू लीव एट 7 p.m. बट हियर द टाइम इज़ ऑलरेडी स्केड्यूल्ड, है ना. यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है वो फ्यूचर में होने वाली है एंड इट इज़ स्केड्यूल्ड. दैट मीन्स इट इज़ कन्फर्म्ड कि ये एक्शन इतने बजे होगी. इसीलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस ओवर हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग which we know that it is going to happen in future. Okay, and we also use present tense to convey our thoughts and feelings. For example, if we write we like to play music, so here we are showing our thought, right? We are showing our thoughts that what do we like? We like to play music. So yes, we can use simple present tense when we are talking about our thoughts. Okay, so these are some of the uses of simple present tense which we would be going through from your textbook also. But before that, let's see what is given over here. Let's get started. Look at the following pictures and answer the question in complete sentences. What do you think? What does the girl do? What is the girl doing over here? Can you tell me, students? Well, the girl is washing her hands, right? So what we can write over here? The girl is washing her hands. Okay? And what is the boy doing? What do you think? What is the boy trying to do? Can you tell me, students? Yes, the boy is climbing the tree. Okay. Now here, if you notice, students, these sentences tells us about what is happening right now. Okay, now we will read the sentences given over here. I keep the jug on the table. I keep the jug on the table. The baby sleeps in its cot. The baby sleeps in its cot. I cook dinner every Tuesday. She plays with her dolls in the evenings. Now if you see the sentences, students, यहाँ पर ये जो भी सारे verbs है हमारे keep, sleeps, cook and plays, right? They all are said to be in present tense. Okay, because we are talking about the action which has happened in present. ठीक है, जो actions अभी present में हुई है, आज हुई है, राइट, उसके बारे में हम बात करते हैं या फिर हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमें पता है कि वैसे ही होने वाली है, जैसे कि फैक्ट्स होते हैं. या फिर हम जब अपनी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आई कीप द जग ऑन द टेबल. नाउ दैट सेंटेंस इफ़ यू सी,
It is just talking about something which is done at that time, right? I keep the jug on table. Now that action happened today in present, इसीलिए उसको हमने present tense में रखा है. The baby sleeps in the cot. Obviously we know that कि बच्चा कहाँ पर सोता है. It sleeps in the bassinet. Cot का मतलब क्या होता है? The small bed which is used for babies, right? So ये एक नॉर्मल सी बात है जो सबको पता है, राइट? इट इज़ समथिंग विच जनरली एवरीबडी नोज एंड दैट्स वाई वी हैव kept it in present tense. I cook dinner every Tuesday. Now what does it indicate? Every Tuesday का मतलब क्या होता है कि मैं हर ट्यूसडे को डिनर कुक करती हूँ. दैट मीन्स कि दिस एक्टिविटी इज़ कंडक्टेड एवरी ट्यूसडे. मतलब ये मेरी एक रिपीटेड एक्शन है जो मैं हर ट्यूसडे को करती हूँ. एंड दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज कंसिडर्ड टू बी इन प्रेजेंट टेंस. शी प्लेज विथ हर डॉल्स इन द इवनिंग. नाउ दिस सेंटेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम एक्शन विच हैपन्स इन द इवनिंग ऑन डेली बेसिस. ठीक है, यहाँ पर भी ये जो बात हो रही है कि शी प्लेज विथ हर डॉल्स इन द इवनिंग. नाउ दिस इज समथिंग विच माइट बी गोइंग ऑन एवरी इवनिंग. हर शाम को वो अपनी डॉल्स के साथ खेलती है. ओके, एंड दैट्स वाई यू कैन से कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस 3 and 4 है, दे टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली. सी सेंटेंस 3 and 4, they talk about the action that happens regularly. The verb keep, sleeps, cook and plays are the simple present tense, and we often use the words like in the evening, every Tuesday, usually, always, every day with the present tense. So जब भी हम present tense के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे सारे words use करते हैं कि every day, I do it every day, every morning, every evening, या फिर mostly I do this activity, always I do this activity, है ना, generally I do this activity. So those words indicate कि वो जो action है या वो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस activity के बारे में बात हो रही है, वो generally होती रहती है. That means it takes place often, and that's why we use present tense for it. Okay, so you need to remember the definition. The simple present tense talks about an action that takes place in the present moment. That means the action which happens in present, and to represent those action we use simple present tense. Okay, let me show you few things which are necessary. So the simple present tense in English is used to describe an action that is regular, true or normal. Actions which are regular. Regular मतलब जो daily basis पे होता है, right? Which is true, that means जो facts होते हैं. And normal. Normal means किसी चीज़ को करने का एक तरीका होता है या फिर कोई चीज़ जैसी होती है वो हमेशा वैसी ही रहेगी. And that is considered to be its normal form. So when we are talking about something which is normal, which is regular and which is accepted universally, then we are going to use simple present tense. Okay, now if you might have noticed the sentences which we have seen over here, if you see the verbs keep, sleeps, cook and play. Now in all these 4 verbs, students, if you see, some of the verbs has s in it while some don't have it, right? So why is it so, students, that some verbs has s in it while some verbs do not have s in it? So here, students, there is one specific rule कि जब भी हम present tense की बात करते हैं, whenever we are talking about present tense, there is a rule related to third person singular. अभी आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन पता होना चाहिए, राइट? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई एंड वी. वी प्लूरल होता है और आई सिंगुलर होता है. सेकेंड पर्सन यू, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम. एंड फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं ही, शी एंड इट, और प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग दे. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब होगा उसमें हमें
एस का साउंड ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? एस का साउंड, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ एस ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ई एस ऐड होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आई ई एस भी ऐड हो सकता है, राइट। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, एट दैट टाइम एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अवर सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देन योर वर्ब ऑल्सो हैज़ टू बी सिंगुलर। और ये सिंगुलर वाला वर्ब कैसा होता है? इट हैज़ एस साउंड इन इट. You might have studied in third standard, and I remember teaching you this point while I used to teach you in third. Okay, so ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज़ होता है, right? We often add s or es to the base form of the verb to form simple present tense. You can see the rule over here. And we use simple present tense to form questions. We also use it to form negative by adding do not or does not before the verb. ओके, सो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। और हमको वर्ब के अंदर एस या ई एस या आई ई एस का एडिशन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्ले, तो प्ले का सिंगुलर वर्ब क्या होगा? प्लेज, राइट। इफ आई राइट कैच, over here what could be the singular form of the base form? catch base form है, ठीक है। verb का base form है catch, उसका हमें plural form करना है, सॉरी singular form करना है जिसमें s का sound होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें es ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? es, catches, ओके। s का साउंड ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ s नहीं ऐड कर सकते, हमको es ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मान लो मैं लिखती हूँ फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, और अगर मुझे उसे सिंगुलर करना है, अगर बर्ड लिखा है मैंने, तो बर्ड के साथ जो हमारा वर्ब होगा वो हो जाएगा FLIES, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? जिसमें एस का साउंड होता है, वो उसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, और जो हमारा बेस फॉर्म होता है उसे हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिनते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल रिलेटेड टू इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ टेबल रिलेटेड टू इट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है उसमें हमें वर्ब के अंदर एस का साउंड ऐड करना पड़ता है। वी हैव टू ऐड एस टू द वर्ब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड फॉर रेस्ट वी हैव टू यूज़ बेस फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आई है, सो अलॉन्ग विथ आई वी आर गोइंग टू यूज़ स्पीक, आई स्पीक, या फिर आई लर्न, यू स्पीक और यू लर्न, we speak and they speak और they learn। बट अगर मान लो कि आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इफ़ दैट सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज़ ही, शी और इट, तो उसके अंदर हमें एस का साउंड ऐड करना पड़ेगा। स्पीक्स एंड लर्न्स, ही स्पीक्स, शी लर्न्स, इट लर्न्स या इट स्पीक्स, ओके। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस because it is very important while you are writing your sentence in the present tense, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ sorry, let me write it again. The car stops. सो यहाँ पे कार जो है वो सिंगुलर है हमारा, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ जो हमारा वर्ब है स्टॉप्स, उसके अंदर हमें एस का एडिशन करना पड़ा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने हमारे वर्ड में भी किसका एडिशन किया है? एस का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो सिंगुलर वर्ब होता है उसमें एस का साउंड होता है। अगर मान लो इसकी जगह पर मैं लिखती हूँ कार्स,
तो उसके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो होगा स्टॉप. कार्स स्टॉप. वाई डू वी राइट इट लाइक दैट? बिकॉज कार्स जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है ना. तो जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में आ जाता है ना. ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी कि ये जो वर्ब होता है वो हमें बेस फॉर्म में रखना पड़ता है. बेस फॉर्म मतलब द ओरिजिनल फॉर्म जिसमें वर्ब प्रेजेंट होता है. ठीक है, द वर्ब फर्स्ट और ओरिजिनल फॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी बेस फॉर्म. और वो हम प्लूरल भी गिन सकते हैं उसको. इसीलिए हमारा सब्जेक्ट जब भी प्लूरल होता है तब भी हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है. ठीक है. और आई और यू जो है उसके साथ जो रूल होता है वो एक्सेप्शन होता है. इट्स एन एक्सेप्शनल रूल रिलेटेड टू आई एंड यू. आई सिंगुलर है फिर भी उसके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा. ठीक है. और यू जो है वो सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है. इसीलिए यू के साथ भी हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस रूल. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि हाउ डू वी फॉर्म अ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस, राइट? सो हाउ इज इट? वी हैव टू राइट subject, then the next thing would be verb, right? It might have s or es depending on the subject, and then it would be our object. Okay, and as I told you, if your subject is singular your verb should be singular, मतलब s sound वाला. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. लेकिन ये रूल को एक्सेप्शन इस रूल से एक्सेप्शन किसको मिलता है? आई एंड यू को. आई सिंगुलर है बट स्टिल वी हैव टू यूज़ द प्लूरल वर्ब, दैट मीन्स बेस फॉर्म. और वैसे ही यू के लिए रूल होता है कि यू जो होता है वी यूज़ इट फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट? एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी हैव टू यूज़ प्लूरल वर्ब ओवर देयर. ओके. Now we are going to learn how to form question and negative sentences from the in present form. Okay, so let's see the table which is given in your book. So turn your page number 56. Let's see the table given over here. The table shows the form of simple present tense and it also shows how the simple present tense can be written in negative sentences and question. Now here students you need to recall the chapter which we have already studied, right? हमने kinds of sentences जो chapter है वो already हमने पहले पढ़ लिया है और उसमें हमने सीखा था कि हम sentence को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, affirmative कैसे बनाते हैं या फिर हम उसको क्वेश्चन में कैसे टर्न करते हैं, राइट? वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है ना? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और मैंने आपको जो रूल्स सिखाए थे उसके अंदर वो भी आपको ध्यान देने पड़ेंगे, है ना? सो यहाँ पे ये जो टेबल है उसमें दिखाया गया है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट यू कैन राइट आई और यू ईट केक. इफ़ यू मेक नेगेटिव यू हैव टू यूज़ डू नॉट. आई और यू डू नॉट ईट केक. एंड व्हेन यू मेक अ क्वेश्चन you have to use do I or you ate cake. Do I eat cake or do you eat cake? Now if we are talking about third person singular, right? जब हम third person singular की बात करते हैं she or he eats cake. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो verb है वो eats हो गया, मतलब s लग गया उसके अंदर, है ना? क्योंकि she और he क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारा जो वर्ब है वो भी एस साउंड वाला हो जाएगा. शी और ही डज नॉट ईट केक. और शी और ही के साथ हम डू नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? डज यूज़ करेंगे. एंड फॉर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज़ डज शी और ही ईट केक. दैट मीन्स डज शी ईट केक और डज ही ईट केक, राइट? फिर दे और वी है. दे और वी वापस क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल. तो उसके साथ भी हम लोग हमारा जो वर्ब है वो
प्लूरल ही रखेंगे, मतलब बेस फॉर्म रखेंगे. एंड व्हेन वी फॉर्म अ क्वेश्चन वी हैव टू राइट दे और वी डू नॉट ईट केक एंड डू दे और डू वी ईट केक. ओके. मदन ईट्स केक. नाउ योर स्टूडेंट्स, मदन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर को. ठीक है, इसीलिए उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, मतलब एस साउंड वाला. मदन डज नॉट ईट केक एंड डज मदन ईट केक. एंड द लास्ट वन इज मदन एंड चिंटू ईट केक. नाउ हियर मदन एंड चिंटू, मतलब हमारे पास दो नाउन्स है, मतलब ये प्लूरल हो जाएगा, है ना. इसीलिए यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो भी हमने, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, द वर्ब विच इज ओवर हियर दैट इज ऑल्सो इन द प्लूरल फॉर्म, बिकॉज मदन एंड चिंटू रिप्रेजेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल, है ना. एंड मदन एंड चिंटू डू नॉट ईट केक एंड डू मदन एंड चिंटू ईट केक. ओके. नाउ दिस थिंग रिगार्डिंग नेगेटिव एंड क्वेश्चंस, ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने के टाइम पर. सो स्टूडेंट्स, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वापस से वो चैप्टर जो है राइट वो एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज जब आप वो चैप्टर रिवाइज करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हम प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और क्वेश्चंस बनाने के लिए, राइट. Let me show you some more examples related to it. If your sentence is in positive form and when we are writing it in the present simple form, right, तो उसमें I और you जो है, I जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, एंड you is सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. तो उसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा दैट वुड बी बेस फॉर्म, दैट इज सिंगुलर. आई वर्क, यू वर्क. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी, ही एंड इट, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो उसमें जो हमारा वर्ब होगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एस का साउंड ऐड करना पड़ेगा. देन ओनली इट विल बी सिंगुलर वर्ब. दैट मीन्स शी वर्क्स, ही वर्क्स एंड इट वर्क्स. ठीक है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वी, यू एंड दे, जिसमें वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू जो है वो सेकेंड पर्सन प्लूरल है और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है ना. तो सारे प्लूरल वर्ब्स के साथ हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, मतलब बेस फॉर्म में होगा. ठीक है. Now when we are talking about interrogative sentence and we are using the verb work, तो आपको याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ एक्शन वर्ड है, ओके, इफ़ योर वर्ब इज हैविंग ओनली एक्शन वर्ड, एट दैट टाइम when you are forming a question you can use do or does for present tense. उसमें does हमें कब यूज़ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, एंड फॉर रेस्ट वी आर गोइंग टू यूज़ डू, मतलब सारे प्लूरल नाउन के लिए एंड आई एंड यू के लिए. ठीक है. सो ये आपको याद रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल एंड वी वांट टू फॉर्म अ क्वेश्चन बट वी डू नॉट हैव बी वर्ब्स, राइट, इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट, ये सारे वर्ब्स हमारे पास नहीं है सेंटेंस में, हैज़, हैव, है ना. ये सारे वर्ब्स अगर हमारे पास सेंटेंस में नहीं है, एट दैट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज़ डू और डस. अभी इसमें आपको याद रखना है कि डू कब यूज़ करना है और डस कब लिखना है. यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन यू फॉर्म अ क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू राइट डू और डस. नाउ डू आई वर्क and do you work. When we are
यूजिंग इट विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब हमको क्या यूज़ करना है, डज शी वर्क, डज ही वर्क एंड डज इट वर्क. सो व्हेन वी आर फॉर्मिंग अ क्वेश्चन यूजिंग डू, डज और डिड, हमारा जो वर्ब है वो वापस बेस फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, इट कम्स बैक इनटू बेस फॉर्म. यहाँ पे डज है इसीलिए यहाँ पे वर्क्स नहीं लिखा हमने, वरना हमने आगे ही सीखा कि हमको क्या लिखना पड़ता है अगर थर्ड पर्सन है तो. अगर पॉजिटिव नॉर्मल सेंटेंस है तो थर्ड पर्सन के साथ हमें एस लगाना पड़ेगा, है ना, वर्ब के अंदर. लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं एंड व्हेन वी आर यूजिंग डज ओवर देयर, डू या डज जो भी ऐड करते हैं, तो हमारा जो वर्ब होता है वो वापस बेस फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज डू. डू वी वर्क, डू यू वर्क और डू दे वर्क. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर कि हम डज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और बाकी सब के लिए हम डू यूज़ करते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस. वी विल see negative sentence in tomorrow's class. Okay, thank you students.